Are you able to let's start with my screen. Are you able to see my screen, all of you? Okay, okay. Then now we'll study usage of operators, proper usage of operators. We'll expand more in on this, okay, because it's a base of a programming language. Okay, so let's start. The symbols which I have already told you that are some operators I have already told you that arithmetic, relation, identity, logical, bitwise, membership, etc. Okay, but now we are going to change, we are going to explain more, and usage and purpose, how to use, how to express, write expressions on behalf of these by using of these operators. Okay, so let's start. So operators that I have already told you, that is arithmetic operators, relational operator, identity operators, logical operators, bitwise operator, membership operators. So let's start with arithmetic operator. Here I have taken just a little, I will take a table, see with example. Okay, so here see the operator, these are the arithmetic operator. First I will tell you addition. ठीक है, here I have taken a value x plus x is equal to 14 and y is equal to 4. Okay, so that means whatever the value of x and y, that will be accordingly it will work. So suppose that the value of plus when addition for will use the operator for addition. Okay, so here these are the operands, x and y are the operands, and x plus is a operator. Okay, so when you will add these two values, 14 plus 4, 18, that is simple. Then if you will talk about minus, okay, subtraction, that is subtraction, x minus y means the value of 14 minus 4 is 10, that everybody can do. Asterisk will use for multiplication. Okay, multiplication, x into y is equal to 56, that is 14 into 4 is equal to 56. Now if I will talk about a slash, then it is a division, it is a float. The output of the value will be float, always division will be float, x by y, the output will be 3.5. now this is the floor division. Okay, this is a floor division. Double slash will round off the value, okay, to 0. Round off complete cut short means the floor value, the main value will give, the after decimal it will not give, only the main value. So here it is 3, 14 divided by 4, it is 3. Then also it will give 3. It is a floor, the output will be always floor value, means the main value before decimal. Okay, it will give only the floor value, not complete value with decimal. Okay, it will not complete round off. For that we will use some functions, that round, seal, floor, these are different methods which will use functions, mathematical functions, that I will tell you later. Okay, now say it is a modulus. Modulus will tell you the remainder of a number. Okay, remainder means suppose that is 14 divided by 4, so the remainder is 2. Okay, the remainder value will be defined, so it will use like some checking conditional purpose, like suppose that if I will give you that check whether the number is even or odd. So in that case 24, suppose that it is 24. Okay, 24 divided by 5, suppose that. Okay, so the remainder when you will divide in here, so the remainder will be 4. Okay, so the 4 will be the output of the remainder when you will use modulus. Okay, and when you will use simple slash, then in that case you will get the normal division method, like output you will get over here 3.5. okay, now see exponent. Exponent means the value, this is suppose that 2 to the power 2, the output will be 4. So this expression you will write in the form of two ways, that is you can write like this, suppose that 2, then 2 to the 4. Okay, when suppose that the value will be 2 to the power 8 or 4, suppose that, then you will write like this, 2 into 2 into 2 into 2. So it is very tedious task
that how at what place he will go, ठीक है, or at what value will define, okay, or what till what number of, suppose that exponent is to the power 84, then you will write no. So that's why the exponent expression is there. You can write any number like to the power 84, then it will be output will whatever the output proper output you will get. Okay, so here the number is whatever 14 to the power 4, okay, x to the power 5, so the output will be 38416. so in these methods we will use these operators and symbols when you will write a program in at the time of coding. Okay, so it will very easy and normal method. Okay, now see some shorthand methods which we'll use to define, same as I have told you in the first class, that some methods when you will write like this, suppose that x and y ऊपर वाली value same value we will take, x and y, it is 14 and it is 4, okay, 14 and 4, and suppose that we will write a is equal to 2x, ठीक है, a is equal to x. Now suppose that I want to write x, the value of a is x means 14, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू क्या हो जाएगी x की y a की 14 ही हो जाएगी. Now in this way when you will write a shorthand, ठीक है, तो what you will do, x plus is equal to y. Suppose that this is the statement. This means the value of output will be x is equal to x plus y, ठीक है, x is equal to x plus y. और जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं, when you will write x is equal to y, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसका मतलब होगा y, डिवीजन भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू x बाई वाई, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे इसको. या फिर जैसे यहाँ पे दिया गया है दैट इज द फ्लोर डिवीजन, ठीक है, तो सिंपल मेथड विल बी ऑलवेज बी सेम, ठीक है, फॉर एवरी कंडीशन वट एवर यू विल वांट टू यूज x into is equal to 5. Now see if we will use these operators in a simple method, okay, so this plus minus into, ठीक है, डबल कोट डबल स्लैश, आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड. मेन फंक्शंस जो होते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दैट इज फ्लोर, इसमें कन्फ्यूजन होता है, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट, ठीक है, तो इन तीन को बहुत अच्छे से आपने साफ समझ लीजिए, ठीक है. एक बार फिर से बता देता हूँ. सो हियर slash will use that for division, simple division, string will use for multiplication, okay, and like this only, ठीक है. This is a simple way when you will write, like suppose that अगर हम यहाँ पे लिखते हैं a is equal to x into y, a is equal to x by y, a is equal to x, so output will be the value of a will be this only, okay. Now suppose that the value of a is star is equal to 5, ठीक है, a star is equal to 5, that means this is a simple method, okay, it is a short method that I have already told you, okay. So here the double slash will be used for floor division, like I have already told you. Let's suppose that the value will be 14 by 4, okay, this is the value, then the output will be 3, it will not come in the decimal format, okay. When suppose that divided by 14 is percent by 4, okay, so 4th here 12, ठीक है, तो the again division the remainder will be 2, so percent will be of remainder will be 2. Now same 14 into 4, okay, 14 into 4, so it is 14 into
4 मीन्स द पावर ऑफ 14, इट इज़ द पावर मीन्स सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा है जैसे a टू a की वैल्यू यहाँ पे 10 दी गई है, ठीक है। सो हियर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू लिखा हुआ है 5, ठीक है। तो दैट मीन्स द पावर 10 इज द पावर ऑफ 5, ठीक है, सॉरी 5 इज द पावर ऑफ 10 मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू इस तरीके से 10 टाइम्स 5 टाइम्स it will work out and the output will be 1, ठीक है, 1 lakh. So is in this way the calculation will be, assignment operators will be there. So this is the way to shorthand the method. Okay, now see relational operator here. Next operators are relational operator, ठीक है. It's the simple operators we will use, will check the conditions regarding this, ठीक है. equality check के लिए होता है, ठीक है, से check for equality, ठीक है. These results will be gives you true or false condition, ठीक है, true or false basis पे होता है. So first is a is less than b, okay, suppose that. So the condition will be check for a is the value less than b or not. Same as if I will write a is greater than b, then the condition will check for a that a is greater than b or not. If I will write a is less than or equal to b, so in this case the value of a is less than or equal to, मतलब equal to भी हो सकती है and less than भी हो सकती है, ठीक है. Then same as greater than equal to 6, okay. अब यहाँ पे equal to लिखा हुआ है, तो a is equal to b. एक क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज इक्वल टू एंड डबल इज इक्वल टू, ठीक है. दिस इज द कंडीशन, ओके. व्हेन द यू यूज डबल इज इक्वल टू, दैट मीन्स इट इज यूज फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है. ये कंडीशनल के लिए यूज होता है एंड इट इज फॉर असाइनिंग द वैल्यू, ठीक है. इट इज फॉर असाइनिंग द वैल्यू एंड दिस इज फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके. इट विल चेक द कंडीशन, द वैल्यू ऑफ a is perfectly 10 or not, exactly 10 or not, ठीक है. and then not is equal to a, not is equal to b means the value of a is not is equal to b, मतलब a और b की वैल्यू दोनों इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है. so the possibilities accordingly the values will accordingly change, ठीक है. तो यहाँ पे जो भी हमने ये कंडीशंस बताई हैं that should be follow properly, ठीक है. तो इनको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है. और लूप में भी इनका यूज़ होता है, ठीक है. कैसे यूज़ करते हैं, व्हेन वी विल स्टडी इट कंडीशंस एंड लूप, देन आई विल एक्सप्लेन इट. नाउ आइडेंटिटी ऑपरेटर इज़ एंड इज़ नॉट, ठीक है. ये हमने स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, ठीक है. तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है. इज ऑपरेटर, जैसे हमने कहा कि इफ़ ए एंड बी देन ए इज़ बी विल कम टू ट्रू, मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों की सेम होंगी तो इज ऑपरेटर यूज़ करना है, ठीक है. जैसे हमने लिखा ए इज़ बी, ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको आउटपुट ट्रू और फॉल्स मिलेगा, मतलब दोनों बोथ द वैल्यू शुड बी सेम. यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स. क्यों, बोथ द वैल्यूज विल बी सेम, दैट्स वाई, ठीक है. इज नॉट 5, अगर इक्वल टू नहीं होंगी देन इट विल ट्रू, ठीक है. रिलेशन ऑपरेटर डबल इज इक्वल टू एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर इज डिफर्स इन केस स्ट्रिंग दैट विल सी लेटर, ठीक है. वो हम बाद में देखेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर्स के, अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू b है इन दिस केस, और अब a और b की वैल्यू डिफरेंट स्ट्रिंग है, देन द कॉन्सेप्ट विल बी डिफरेंट, ठीक है. फॉर स्ट्रिंग वैल्यू मीन्स सेंटेंसेस वैल्यू विल डिफरेंटली वर्क, ठीक है. नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है. लॉजिकल ऑपरेटर की बात करेंगे तो हम लोग लॉजिक की बात करेंगे, ठीक है. तो पाइथन हैज़ 2 बाइनरी लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज a इज इक्वल टू ट्रू, b इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है. जैसे a और b विल रिटर्न ट्रू. जैसे हमने कहा इफ़ a इज इक्वल टू ट्रू एंड b इज इक्वल टू फॉल्स, अगर a और b ट्रू हैं तो फॉल्स होंगे, ठीक है. तो वैल्यू ट्रू होंगी दोनों में से अगर कोई होता है. इफ़ a true and b is false then a and b will return false, ठीक है. यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, और का कॉन्सेप्ट एंड का कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि और के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कंडीशन विल बी, बोथ कंडीशन विल बी नॉट मैंडेटरी, both condition will true, any one b or a, any one condition should be true, ठीक है. और
अगर एंड ऑपरेटर विल यूज, देन इन दैट केस the value of a and b should be, both values will be false or true. ठीक है, तो दोनों कंडीशंस यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए थी, देन इट विल बी वर्क एज अ ट्रू, वेदर इट विल फॉल्स। ठीक है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगे, जैसे अगर हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलें कि ऐसे हमने ए और बी लिया, तो अगर आउटपुट दोनों ज़ीरो हैं या कह सकते हो ट्रू हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, द आउटपुट विल बी ट्रू, सॉरी ये फॉल्स के सिंबल्स हैं, दोनों फॉल्स हैं, देन इट विल बी फॉल्स। अगर दोनों के केसेस ट्रू हैं देन केस ट्रू होगा आपका। ये एंड के केस बता रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एंड, बोथ कंडीशंस विल ट्रू देन इट विल ट्रू। If one condition is false and one condition is true, then also it is false. If first condition is true and second condition false, then also it is false. The case only when both conditions will be true, then it will be false, true. ठीक है, the output will be true. Same as अगर हम और ऑपरेटर की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम a b और आउटपुट की बात करते हैं तो क्या होगा, अगर both conditions will true, then also it will true. One of any condition, suppose that this is true and this is false, then also it is true. This is false, this is true, then it also it is true. Both conditions are false, then also it is false, then only it is false. Means if both conditions will not work, then it will work as a false. ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट। ठीक है, नॉट ऑपरेटर will check the condition which is not is equal to or not equal to value। ठीक है, द कंडीशन विल नॉट वर्क एज अ ट्रू। ठीक है, हमने अभी बताया था कि जैसे हमने लिखा ए नॉट बी, ठीक है, ए नॉट बी, ठीक है, तो ए इज नॉट इज इक्वल टू बी। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ नॉट विल वर्क, ओके, द आउटपुट विल बी रिमेन सेम। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम लोग टाइप कास्टिंग की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग, अश्विन बेटा आप प्रेजेंट की रिक्वेस्ट ना करिए, अपना काम, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, दैट इज़ बेटर। ओके, सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीजर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंटीजर की बात करते हैं। ठीक है, सपोज दैट अगर हम कोई भी डेटा टाइप लेते हैं, इफ़ एनी डेटा टाइप ऑफ एनी कॉन्स्ट्रक्ट्स, ठीक है, सी हियर इंटीजर नंबर फ्रॉम इंटीजर लिटरल, ठीक है, और फ्लोट लिटरल और स्ट्रिंग लिटरल, इनमें कन्वर्ट हो सकता है ये। ठीक है, फ्रॉम एन इंटीजर टू इन एनी ऑफ स्ट्रिंग वी कैन चेंज। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक्स वाई, दैट यहाँ पे 3 वैल्यूज हमने ली हैं। इंटीजर की वैल्यू 1 है, 2.8, 3। तो the value here which I have defined, it is 1, it is 2, it is 3। यहाँ पे डबल कोट यूज़ हुआ है, फिर भी यहाँ पे क्योंकि वैल्यू डेटा टाइप इंटीजर यूज़ है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हमने किसी का वैल्यू को कन्वर्ट करना है, सपोज दैट x इज इक्वल टू 13 दिया गया है। ठीक है, हमें a इंट और यहाँ पे हमने लिखा x। ठीक है, अब सपोज दैट यहाँ पे हमने इफ़ आई विल राइट ओवर हियर द आउटपुट विल बी 13, बट सपोज दैट इफ आई विल राइट ओवर हियर फ्लोट x, then the value will be 13.0. ठीक है, the output will be changed, okay, it will be 13.0, and here if I will take integer, the output will be 13. Okay, now see if I will take float, then if I have taken float the 1.0, 2.8, then always it is 2.8. if I will take 3, then it is also 3.8, 3.0, sorry, then float it is 4.2. So the output of every value will be different if the not different, according to the data type which you will define. Okay, so the data type will be depend upon the thing that will define whether it will not work. So string, if I will talk about str, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में s1 लिया, सो s1 विल बी s1। 2, सपोज दैट स्ट्रिंग हमने यहाँ पे 2 डिफाइन किया, तो देखो यहाँ पे डबल कोट ही लग के आएगा, बिकॉज द स्ट्रिंग ऑलवेज इन अ सिंगल कोट और इन डबल कोट। सेम एज 3.0, इट इज इक्वल टू डबल सिंगल कोट।
ओके, डेटा टाइप पे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का डेटा लेते हैं और किस तरीके का वर्कआउट हम करते हैं। इसके बाद बात करते हैं ये कन्वर्जन की बात हो रही है। सपोज दैट इफ एनी डायरेक्ट मतलब ऐसे करके कह रहे हो आप x इज इक्वल टू 23 ऐसे, ये हाँ ये तो एक डिफाइन, ये तो हमने बता ही हुआ है कि आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सपोज दैट इफ यू हैव, नहीं स्ट्रिंग लिखना कभी जरूरी नहीं होता है। व्हेन यू विल टेक कन्वर्ट एनी अदर डेटा टाइप टू स्ट्रिंग देन ऑल इट इज इम्पॉर्टेंट। ये हमने सपोज दैट हमने x इज इक्वल टू 23 लिखा है, इट इज नॉट स्ट्रिंग, ओके, बट यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू ए स्ट्रिंग, देन यू विल यूज y इज इक्वल टू str and then 23, then it will be the output will be like this, और इसका आउटपुट ऐसा आएगा, हमने। तो here it is important when you will convert it, हम कन्वर्जन बता रहे हैं, एक तरीके का टाइप कास्टिंग बता रहे हैं कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको इसी तरीके से समझो कि अगर कोई डेटा टाइप, और अगर आप इनपुट लेते हो, हमने आपको पहले बताया हुआ था कि इफ़ यू विल टेक इनपुट ऑफ एनी नंबर, ठीक है, इन दैट केस सपोज हमने कहा कि एक नंबर है उसमें हम स्ट्रिंग इनपुट लेना चाहते हैं, देन यू विल डिफाइन लाइक दिस ओनली इनपुट एंड देन एंटर योर नेम, ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली द वैल्यू विच यू विल डिफाइन दैट विल वर्क अकॉर्डिंगली, इट विल स्ट्रिंग ओनली, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना नहीं पड़ता, स्ट्रिंग इज़ अ बाय डिफॉल्ट वेरिएबल, सॉरी डेटा टाइप, ओके। When you will convert a data from other data type to in the string, then only str is important to write, okay. Now basic terms जो हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्राम्स में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन, स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशन, ये टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं बहुत देर से पहले से भी। कमेंट्स के बारे में सबसे पहले हम ब्लॉक एंड इंडेंटेशन की बात। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कि टाइपिंग में, यहाँ पे जो कंडीशन ब्लॉक की बात करें तो कंडीशन लूप्स का ब्लॉक होता है, ठीक है। अगर हम एक लाइन की बात करें, एक सिंगल लाइन की, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ मैंने मैक्सिमम लाइन लेंथ शुड बी 79 कैरेक्टर्स, ठीक है। एक लाइन की लेंथ जो होगी वो 79, नहीं तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक्स जो होते हैं और डोनेटेड बाय लाइन इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन क्या है, यहाँ वजह से स्ट्रेट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको लिखते इस तरीके से हैं। इफ़ हमने लिखा ट्रू, अगर ट्रू है तो हम प्रिंट यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस देने के बाद वो ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल टाइप, ठीक है, व्हेन यू विल टाइप इट विल वर्क। जैसे ही आप इफ के बाद कोलन लगाओगे एंड देन प्रेस एंटर, द कर्सर विल ब्लिंक ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। एंड व्हेन यू विल प्रेस अगेन एंटर, देन आल्सो इट विल कम, देन यू विल प्रेस ब्लैक स्पेस, हियर यू विल राइट एल्स, इन इसके इंडेंट में एल्स, देन अगेन प्रिंट। इसको हम जब अभी प्रैक्टिकल कल की क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको करके दिखाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादातर। जितनी आज तक पढ़ेंगे चीज़ें उतनी हम लोग नेक्स्ट बेसिक प्रोग्रामिंग कंप्यूटर पे करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इंडेंटेशन पढ़ेंगे, इसको हम इंडेंटेशन, द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ प्रॉपर वे, दिस इज अ प्रिंट एंड दिस इज अ प्रिंट, ठीक है। इफ एल्स ओवर हियर, ठीक है। तो इसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। द प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ द स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड इंडेंटेशन, ओके। लाइन which has instructions और expressions, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस और एक्सप्रेशंस को हम स्टेटमेंट्स बोलते हैं। जो भी हम लिखते हैं वो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हमने प्रिंट ट्रू, तो दिस इज़ द स्टेटमेंट, ओके। अब हम बात करें एक्सप्रेशंस की, एक ही चीज़ है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन a+b, दीज आर द लॉजिकल, ये ऐसे स्टेटमेंट्स को लॉजिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। तो इट डिपेंड्स कि हम कौन कौन से एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं और किस टाइप की फंक्शनिंग, किस टाइप के स्टेटमेंट्स को हम यूज़ करते हैं, किस टाइप के स्टेटमेंट्स को हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जानना इम्पोर्टेंट है कि हम किस टाइप का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं
रिलेशनल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जहाँ पे एंड और नॉट यूज़ होता हो वहाँ लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाता है, जहाँ पे केवल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन का यूज़ हो रहा हो वहाँ पे रिलेशनल एक्सप्रेशन हो जाता है। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन जहाँ पे स्ट्रिंग का यूज़ हो रहा हो वहाँ पे स्ट्रिंग एक्सप्रेशन हो जाते हैं। तो दैट इज़ द प्रोसीजर। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम कमेंट्स की। ठीक है, कमेंट्स प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्सप्रेस करने का में हेल्प करते हैं। व्हेन यू विल राइट अ प्रोग्राम, देन व्हाट यू आर डूइंग इन बाय यूजिंग हैश you will write the statement in a single line. अगर if you will write a single line in this statement in hash, then it will be a comment. It will not work as a instruction. It will just a comment. It is just a reading comment. Okay, here you will not compel that it will execute. No, it will not execute. It will just a symbol. When there are any programmer or anyone else read your program, go through your program, then it will work as a comment. Okay, to understand the program, what the first person who has created this program, that person has written. ओके, तो सिंगल लाइन हमने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ए इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या किया लिखा हमने हैश रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज़। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे दो वैल्यूज़ का कंपेयर हो रहा है, तो इसे हम सिंगल लाइन कमेंट्स कहेंगे और इनको हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट की। तो मल्टी लाइन कमेंट में हम ट्रिपल कोट यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगल कोट को 3 बार लगाते हैं। ठीक है, जो सिंगल कोट होता है ना, जो आप अपॉस्ट्रोफी के लिए यूज़ करते हो, सेम कोट यू विल यूज़ फॉर 3 टाइम्स। ठीक है, देन इट विल वर्क अकॉर्डिंग एज इट इज़। ठीक है, तो इसको हम डॉक स्ट्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन स्टेटमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो इनको हम डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, टर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए यू हैव टू रिमेंबर। ओके, मल्टी लाइन मतलब यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट, यहाँ पे जैसे देखो एग्जांपल में सी एग्जांपल, यहाँ पे 3 कमेंट्स यूज़ करें। दिस प्रोग्राम विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 10 वैल्यूज, फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ 10 वैल्यूज एंड डिवाइड द सम ऑफ फर्स्ट बाय द नंबर्स ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे क्लोज किया। इन दिस केस द वैल्यू विच यू हैव डिफाइंड दैट इज 3 मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेस अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब देखो एक ये हमारा स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखो ये हैश प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट है, ये दिस प्रोग्राम शोज प्रोग्राम का कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या है, हैश लगा हुआ है। यहाँ पे भी देखो ये कमेंट्स का यूज़ है। ये स्टेटमेंट्स हमारे हैं। ठीक है, दीज आर द स्टेटमेंट्स। ठीक है, यही इन्हीं को हम एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इफ़ लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक। ठीक है, एक ब्लॉक है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इफ़ लगाया हमने, फिर इसके बाद ये प्रिंट यहाँ पे इसकी इस लाइन में आ रहा है और इफ़ की लाइन में एल्स आ रहा है। ये हमें ध्यान देना होगा व्हेन यू विल डू द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इन लाइन फंक्शन होता है, ये एट अ टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम कंडीशन, लूपिंग और इस तरीके से यूज़ करते हैं और इनको हम इसी फॉर्मेट में डिफाइन भी करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो नेक्स्ट मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन अ सिंगल लाइन। अब एक और स्टेटमेंट है कि हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक लाइन में कैसे लिखते हैं। जस्ट वी विल यूज़ अ सिंगल सेमीकोलन। ठीक है, हम यहाँ पे सेमीकोलन, वैसे पाइथन में सेमीकोलन, पहले अदर प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन वी आर यूज्ड बट फॉर आफ्टर एवरी स्टेटमेंट, बट इन पाइथन we will use, if you want to write a single line program, program in a single line, multiple statements in a single line, then you will write like हमने लिखा x is equal to 5, then semicolon, then print value x। तो इस तरीके के statements for this type of statements we will use a multiple statement, multiple on a single line, multiple statements on a single line। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को? पूछो बेटा। डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे डबल कोट लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक डबल कोट लगा हुआ है, ये डबल कोट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंगल कोट लगाएंगे एक बार।
ये एक करेक्टर का काम कर। जब आप दोनों यूज़ करोगे बोथ साइड, देन इट विल नॉट, इट विल वर्क एज इट इज़। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंगल, हाँ हाँ, हाँ, हम्म, हम्म, तो उसके लिए वही तो बता रहा हूँ, जैसे हमने लिखा प्रिंट, ठीक है, अब हमने लिखा इसमें ये, हाँ 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 बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, नहीं बिल्कुल होगा। जैसे हमने लगाया यहाँ पे डबल कोट लगाया, ठीक है, और फिर इसको जो हमारा ओपन स्टेटमेंट होगा, जैसे हमने कहा स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे हमने इसको जो पहले वाला स्टेटमेंट है वो ये लगाया और फिर इसको क्लोज कर दिया है, फिर कॉमा लगाया, देन यू हैव राइट, हमने देन यू विल राइट स्टेटमेंट, हमने ये लगा दिया, एक क्लोज हुआ, एक स्टेटमेंट ये हमारा ओपन हो गया, ठीक है। तो फिर हमने लिखा डबल कोट में दोबारा, प्लीज़ गिव मी वाटर, ठीक है, फिर हमने क्लोज कर दिया, फिर हमने कॉमा लगाया, देन हमने क्लोज वाला जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ ओपन हुआ था, फिर हम दोबारा ये लगा देंगे, तो हमारा ये स्टेटमेंट जब प्रिंट होगा तो इस तरीके से आएगा, प्लीज़ गिव मी वाटर, इस तरीके से आएगा। नहीं समझे? अलग अलग करना पड़ेगा, सिंगल लाइन में नहीं हो सकता, फिर वो एज अ कोड जनरेट होगा, एज अ इंस्ट्रक्शन जनरेट होगा, ना कि एज अ कमांड। यहाँ पे ये एज अ करेक्टर इनपुट होगा, ये एज अ करेक्टर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, आज के लिए हम यही रखेंगे, कल से जितना हमने आज पढ़ाया इनके बेस पे छोटी छोटी प्रोग्रामिंग्स करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग, ये मैं आपको शीट भी भेज दूँगा, so आपको I will send you this what PDF